یسوع مسیح کے زندہ جلال قادر اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ڈور ٹو ڈور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب گل، اور آج میں موجود ہوں دنیا پور 26 چک میں، اور میرے ساتھ بڑی ہی خوبصورت فیملی ہے۔ میرے ساتھ بھائی سمر گل کی فیملی موجود ہے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا گواہی ہے۔ سلام بھائی۔ سلام بھائی جی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی جی خیریت، دعاؤں خداوند کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، خیریت ہے آپ کی؟ جی شکر ہے، خداوند کا بڑا فضل ہے۔ اور بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آئزک ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، آئزک ٹی وی دیکھتے ہیں جی، اور بہت اچھے پروگرام ہیں۔ بھائی انور کی دعا سے ہمیں بہت ساری برکات ملتی ہیں، اور اس سے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے جو ہے وہ بہت ساری تقویت ہے، اور خداوند کا جلال جو ہے وہ بہت زیادہ۔ کتنے عرصے سے آپ آئزک ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ آئزک ٹی وی دیکھتے ہوئے تو تقریباً ہو گیا اپنا کوئی 10-11 سال۔ تو اس سے پہلے بھائی فضل کا یہ اپنا چینل نہ تھا، لیکن ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہی، اور ان سے وقتاً فوقتاً دعا بھی کرواتے رہے ہیں۔ اور اس وقت پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، تو ہمارے گاؤں کے سر ناصر صاحب ہیں، انہوں نے دکان بنائی ہوئی تھی۔ ہم اکثر و بیشتر ان کی دکان پہ جاتے تھے، اور جا کے تو ان سے دعا جو ہے وہ کرواتے تھے جی۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، ہمیشہ خوش رہیں اور مسیح میں بنے رہیں، اسی کے نام کو آپ عزت اور جلال دیتے رہیں۔ جی سلام بہن جی۔ سلام بھائی جی۔ جی آپ بھی آئزک ٹی وی دیکھتی ہیں شوق سے؟ ہاں جی، ہم بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو میری طرف سے بھائی فضل کو، آئزک ٹی وی کو والوں کو، اور سب دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ کیونکہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ میری زندگی میں یہ بڑی گواہی ہے کہ میری زندگی میں یسوع نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ سب کچھ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ سب یسوع کی مہربانی کی وجہ جی سے۔ بڑا خوبصورت گھر ہے آپ کا، اور خداوند نے آپ کو اچھے بچے بھی دیے ہیں، اور آپ اپنی گواہی شیئر کر سکتے ہیں تمام دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ۔ شادی سے پہلے میں نے 1 سال پہلے توبہ کی، اور پھر شادی میری ہو گئی، اور شادی کے بعد میری زندگی میں اتنی مشکلات بڑھتی گئیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اس وقت میرے بچے بھی فوت ہو جایا کرتے تھے۔ پہلے میری بیٹی تھی، وہ اس کے بعد میرے بیٹے بیٹیاں ہوئیں، لیکن فوت ہو گئے۔ پھر مجھے بھائی فضل کا نمبر پتہ نہیں کہاں سے مجھے بھائی بابا منشی نے لا کے دیا، تو میں نے ان سے پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتے تھے، ان سے دعا کروایا کرتے تھے 8 دن کے بعد۔ اگر وہ مل جاتا تو ہم دعا کروا لیتے، نہیں تو پھر ہم لوٹ کر واپس آ جاتے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ان کے دعا کے وسیلہ سے خدا نے آج مجھے برکت دی ہے، اور مجھے ایک بیٹا دیا ہے جو ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے مجھے خدا نے بخشا ہے، اور آج وہ 15 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ خداوند آپ بڑے عرصہ سے خدا کے خادم پاسٹر عمر فضل صاحب سے دعا کرواتے رہے، اور خداوند نے آپ کو بیٹا دیا، اور وہ 15 سال کا ہو گیا ہے، تو آپ تو بہت عرصہ سے ان کو جانتے تھے اور ان سے پرے کرواتے رہے پی ٹی سی ایل کے ذریعے سے۔ ہاں جی، پی ٹی سی ایل کے ذریعے سے ہم ان سے دعا کرواتے رہے، اور خدا کے دیکھیں کہ اس وقت آئزک چینل نہیں تھا، لیکن میں نے اس کا نام آئزک رکھا۔ ہاللیلویا۔ آپ کو پتہ ہے آج پھر آئزک ٹی وی ہی انور فضل صاحب نے اپنے بیٹے کے نام پہ رکھا، اور آپ نے بھی اپنے بیٹے کا نام آئزک رکھا، تو کیسی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر؟ ہاں جی، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے خداوند نے فضل کیا، اور یہ بیٹا بھی بخشا، اور نام بھی وہی، ٹی وی کا چینل کا بھی نام وہی رکھا گیا۔ اتنے عرصے پرانی آپ کی گواہی، اور خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کرتے تھے جب ٹی وی چینل بھی نہیں تھا ان کا، اور آج آئزک ٹی وی کی ٹیم آپ کے گھر آئی، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی جب ٹی وی پہ گواہیاں آتی تھیں تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی گواہی دوں۔ ہم ایک دفعہ گئے بھی ہیں، ان کے پروگرام میں گئے ہیں، ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے، لیکن پھر وہاں موقع نہ ملا، کیونکہ اس وقت ان کا وہ اولاد کے لیے، عورتوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس دن یہی پروگرام تھا، کلام بھی نہیں انہوں نے سنایا تھا، ورشپ ہوئی تھی لیکن تھوڑی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے جب پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج خدا نے یہی کہا ہے کہ میں ان جو بے اولاد ہیں جوڑے ہیں ان کے لیے دعا کروں، اور خدا کے فضل سے جو لوگ جن کی خواہش تھی ظاہر انہوں نے دعا کی، اور مجھے گواہی کا موقع نہ ملا۔ آج آپ کو موقع ملا ہے، آپ نے دل بھر کر اپنی تمام جو باتیں تھیں، گواہی تھی، وہ تمام ناظرین کے سامنے رکھی ہے، تو آپ
और क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि जो खुदा में यीशु पर ईमान रखते हैं, खुदा उनकी सुनता है और खुदा उनको दुआ का जवाब देता है। मैंने बहुत सारी मुश्किलात देखी, इतनी देखी कि लोग मुझसे नफ़रत करते थे, और जब मैं किसी के घर जाती थी तो मुझे लोग ऐसे करते थे जैसे मैं किसी, बहुत सारी मुश्किलात मुझे देखनी पड़ी हैं और मैंने किसी के घर, सबके घर जो जाना छोड़ दिया, लेकिन खुदावंद के फजल से आज मुझे खुदा ने ये बरकत बख्शी है। खुदावंद ने मुझे इतना सरफराज किया कि मैं फिर खुदावंद ने मुझे इतनी बरकत दी कि मैं लोगों के घर जाकर भाई के साथ मिलकर हम मनादी करते थे, हालेलुया। लोगों के लिए दुआ करते रहे हैं हम। ये खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की। मैं आप तमाम नाजरीन से कहना चाहूँगा कि याद रखें कि उसने कहा तुम मुझसे जुदा के कुछ नहीं कर सकते, और बहन ने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और आज आपने उनकी गवाही सुनी, और मेरा ईमान है कि इस गवाही से आप सब ने भी बरकत को रिसीव किया होगा और ये जान गए होंगे कि जब हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाते हैं तो वो हमारी तरफ ध्यान लगाता है। भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी मम्मा ने आपकी ही गवाही दी और आपका नाम ही आइज़िक रखा है? मैं अब खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, इसलिए मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावन अमन फजल को और उसकी टीम को और आइज़िक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दे और तरक्की दे, हमारी ये दिली दुआ है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके पूरे घराने को बरकत दे। नाज़रीन, इस खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें आइज़िक टीवी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनियापुर 26 चक के अंदर, और मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर इकबाल निसार साहब, और आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में और खुदा के बंदा पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में क्या कहते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। कैसे हैं पास साहब आप? बिल्कुल ठीक, खुदा उनका शुक्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं आपको अपने घर में वेलकम करता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज आपके साथ मौका दिया कि हम बातचीत कर सकें। और आइज़िक टीवी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइज़िक टीवी की वजह से जहाँ पास्टर साहब मुबशर डीकन नहीं पहुँच सकते, खुदा का पाक कलाम पहुँचा है, और खुदा ने ये एक बहुत बड़ा हमें टूल दिया है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली ये ऐसा टूल है कि जहाँ तक हम अप्रोच नहीं कर सकते वहाँ खुदा का पाक कलाम इस मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए पहुँचा है। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आपने यहाँ 26 चक में अपने कीमती वक्त को निकाला है, आप आए हैं हमारे पास। हम दुआ गो हैं कि खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल अपनी बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल करे, और स्पेशली पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, जिनकी वजह से ये सारा जो है वो खुदा का काम बड़ा है और ये खुदा की मर्ज़ी से सारा कुछ होता है। और जब हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं खुदा की खिदमत के लिए, तो खुदा रास्ते भी निकालता है। और वो मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि अनवर फजल साहब ने स्टेप लिया है और बहुत सा खिदमत का काम बड़ा है। और मैं आज दूसरे खादमीन को, डीकन को, मुबशर को बताना चाहता हूँ कि आप पूरी डिवोशन के साथ, पूरी लगन के साथ खुदा के काम को करें और फिर देखें कि खुदा कैसे रास्ते खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात की पास साहब ने, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि पूरे दिल के साथ हम खुदा की खिदमत करें तो फिर देखें वो आपके लिए कैसे कैसे रास्ते खोलता है। और उन्होंने एक मिसाल भी दी कि आप सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को देख सकते हैं कि जब उन्होंने खिदमत शुरू की और वो दिल से लगे रहे, तो आज ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम को पहुंचाया जा रहा है। और स्पेशली जैसे कि पास साहब ने कहा, हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मसीह बहन भाई बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहां पर खुदा के खादम नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पर भी खुदा का कलाम पहुँचाया जा रहा है। तो हम ये सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु को देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी ब्लेसिंग, इतनी बरकत चाहिए हमारे लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, हमारे साथ पास्टर साहब के बच्चे भी मौजूद हैं और वो
आपको कुछ कहना चाहते हैं तो आए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बेटा आप क्या कहेंगे? गीत सुनाना मैं गीत सुनाऊंगी। जी सुनाओ। भागता चला जा रहा हूँ मैं दौड़ते हुए निशान की तरफ, हे भागता चला जा रहा हूँ मैं दौड़ते हुए निशान की तरफ, ताकि यीशु को हासिल करूं, ताकि यीशु को हासिल करूं, उस बड़े इनाम को भटके थाम लूं, हे भागता चला जा रहा हूँ मैं दौड़ते हुए निशान की तरफ, हे भागता चला जा रहा हूँ मैं दौड़ते हुए निशान की तरफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। नाजरीन, इस खूबसूरत प्रस्तुति के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें आइजक टीवी। हालेलुया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दुनियापुर 26 चक में और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल की फैमिली। आएँ उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने कैसा जलाली बड़ा काम किया है और उनकी क्या गवाही है। सलाम सिस्टर जी। सलाम जी भाई। आप आइजक टीवी देखते हैं? हाँ जी भाई, बहुत शौक से देखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ उस गवाही को शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी गवाही हैं और खुदा ने बहुत सी बरकतें दी हैं, और मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन जैसे अय्यूब की ज़िंदगी में खुदावंद ने काम किया, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और बड़ा मौज़ा किया। और खुदा से हम दुआ करते रहे और पास्टर शौकत से हम दुआ करवाते रहे, और खुदा ने जितनी भी मुसीबतें थी, मुश्किलात थी, परेशानी थी, उनसे खुदावंद ने हमें निकाला और रहाई दी। और हम हमारे लिए आगे भी दुआ करें कि हम खुदावंद के कायम रहें और उसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। और मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए आप इसी तरह दुआ करते रहें ताकि हम खुदा में बढ़ते रहें। और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए गवाही देना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मुझे बहाल किया एक बार फिर, और मैं खुदावंद के साथ बहुत अच्छे तरीके से चलती थी, मेरा ख़ानदान। लेकिन इब्लीस ने एक वक्त ऐसा हमारे ऊपर एक गड़ा खोदा कि हम खुदा से पीछे हट जाएं, लेकिन हमारे आइजक चैनल वजह से हम विनिंग सॉल देखते रहे और दुआ करवाते रहे, और खुदा ने हमेशा हमें बहाल किया और खुदा ने मुझे फिर उठा खड़ा किया। और मैं खुदा की दिल की तह से शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे लगता नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी और खुदा के हुज़ूर में बैठ पाऊँगी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे बहाल किया और अपने जलाल के लिए फिर एक बार फिर इस्तेमाल किया। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लिए भी कि खुदावंद ने अपने बंदा को हमारे घर भेजा ताकि आप हमारे लिए बरकतें लेकर आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहन, बरकत सिर्फ़ हमारा यीशु नासरी देता है और उसके वसीले के बगैर कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप दिल से दुआ करती रहीं, खुदावंद के साथ रहीं और आइजक टीवी देखते रहीं। और जब खुदा के खादम आते हैं, दुआ करते हैं, और जब भी जहाँ भी खुदा के कलाम की बात होती है तो बरकत तो मिलती है, तो आप उन बरकतों को रिसीव करती रहीं और खुदा से कभी जुदा नहीं, तो उसने आपको एक बार फिर सरफराज किया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं और वो गीत सुनाना चाहते हैं, तो आइए उनसे गीत सुनते हैं। जी बेटा। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और हमारा फ़ख्र,
शान हमारी और हमारा फख्र, शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी तो आपने बड़ा खूबसूरत गीत सुना, शेर बबर यसु शेर बबर, वो है शान हमारी, बिल्कुल वही हमारी शान है और हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस खूबसूरत प्रस्तिज के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिए। सारा इज़्ज़त और जलाल यसु को देते हैं आज की सारी गवाहियों का। और इस वक्त भी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, भाई नज़ीर मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या गवाही है और खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसा बड़ा काम किया है। जी सलाम जी। सलाम जी। जी आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने क्या काम किया है बड़ा और आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही इस तरह भी, मेरे ना गुर्दे में पत्थरी थी, बहुत बड़ी पत्थरी थी जी। तो 1.5 महीना मैं बहुत तकलीफ़ में था, पर मैं भी दुआ में लगा रहा। मैं दुआ कर डॉक्टर को गया, डॉक्टर आखन ऑपरेशन करा, बहुत बड़ी पत्थरी सी बड़ी सारी। तो बस मेरिया बेटियां भी दुआ करदियां रही, मैं भी करता रहा, साडा भाई यूनस है वो भी करता रहा। बस खुदा ने साड़ियां दुआवां का जवाब दिता, पत्थरी पेशाब के जरिए बाहर आ गई। तो अब आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे यस्सु के नाम को मिले। मैं शुक्र करता हूँ एज़क टीवी के लिए। आए प्यारे यस्सु का नाम उनके दिलों में है। आए प्यारे यस्सु उसको राम, आए प्यारे खुदा उनको बड़ी बरकत दे। अनवर फ़ज़ल के लिए, शौकत फ़ज़ल के लिए मेरी दुआ है ताकि वो बहुत सारे रूहों को बचाने का सवाब ठहर सकें। आए प्यारे यस्सु तू उन पर रहम करना, फ़ज़ल करना। प्यारे यस्सु तेरा शुक्र करता हूँ। आए प्यारे यस्सु शुक्र करता हूँ इस तेरे रहम के लिए, फ़ज़ल के लिए। जब तूने मुझे शफा दी, मुझ पर रहम किया, ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे यस्सु के नाम को मिल जाए। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी तमाम तरह की जो बाकी कमी कमज़ोरियाँ वो भी मेरे यस्सु दूर करे। खुदावंद आपको बरकत दे। जी बहन, आप आइज़क टीवी की खिदमत या सीनियर पास्टर अनवर फज़ल साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पास्टर अनवर फज़ल के लिए ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, घर घर में खुदावंद का कलाम पेश किया और रूहें बची। और मैं पास्टर अनवर का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने ये चैनल पे खोला और हमने शफा पाई और हमने बहुत सी बरक़ात उनसे हासिल की। हमें दुआ करनी नहीं थी आती, जब से हम एज़क चैनल देखते हैं हमें दुआ करना भी आ गई है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बहन। खुदावंद आपको अपने काम के लिए भी कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि उसका कभी हाथ आप लोगों पर, आपके पूरे घराने पर हमेशा बड़ा रहे। नाज़रीन, इस खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए आइज़क टीवी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं 26 चक के अंदर और मेरे साथ भाई स्टीफ़न की फैमिली मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने कैसा जलाली बड़ा काम किया है और उनकी क्या गवाही है। सलाम बहन। सलाम भी। बहन, क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही ये है कि मेरी जो अम्मी थी वो ना हर वक्त, जब भी उस वक्त सिर्फ आइज़क टीवी लगता था और कोई चैनल नहीं था मसीही। तो जब भी दुआ होती थी तो मेरी जो अम्मी थी, मेरी सास थी, तो वो इतनी दुआ करती थी, चैनल पे चाहे वो बंद भी हो जाती थी ना तो अम्मी हर वक्त दुआ करती रहती थी। तो सारा दिन ऐसा माहौल बना रहता था कि हर वक्त दुआ होती थी घर पे। तो हर वक्त मसीही गीत चलना, ज़बूर चलना। तो ये इतना हमारे लिए बाबरकत था कि मेरे शोहर काम पे गए हुए थे तो हम लोग बच्चे और मैं और अम्मी हम लोग घर पे होते थे। तो इतना बाबरकत माहौल रहता था कि इतनी मेरे शोहर की कमाई में बरकत थी कि खुदा ने हमें लेंटर वगैरह के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो खुदा ने हमें इतना खूबसूरत घर दिया, अपना कारोबार दिया। हम लोग का अपना कारोबार है और हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं कि ये सब उस वक्त, अब तो बहुत सारे मसीही चैनल्स हैं लेकिन उस वक्त सिर्फ आइज़क टीवी था। तो इस वजह से हमारे घर में बहुत बरकतें आई हैं और मैं ख़ुसूसन पास्टर अनवर फज़ल के पैगाम जो है ना बहुत शौक़ से सुनती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है उनके पैगाम सुनने से।
खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे सिस्टर जी। आपने जितनी आपने बताया कि ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से आपको मिला है और आपने खुदावंद की तरफ ध्यान किया, खुदावंद की तरफ मुतवज्जो रहे, दुआ करते रहे, तो बिल्कुल जब हम खुदावंद की तरफ ध्यान देते हैं तो वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। और आप अनवर फजल साहब की खिदमत के बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत आगाही है, तो ये सब मेरे ख्याल में उन्होंने शुरू किया है। तो अब तो खैर खुदा का शुक्र है, बहुत पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे उनका खिदमत अब भी याद है कि नहीं, जो उन्होंने किया है वो बहुत बाबरकत है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे बहन। और नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदा के बंदा सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने जो रोया देखी, खुदावंद ने उसको पूरा किया। और आज आप देखें कि घर घर के अंदर मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाता है, तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल हम यसु नासरी को देते हैं। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? गीत वगैरह कोई दुआ? जी। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, पापों को माफ़ करे, पापों को माफ़ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, यीशु तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, हल पल साथ रहे, हल पर साथ रहे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाकी लहू। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन इस खूबसूरत गवाही के साथ और गीत के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा। हालेलुया, सारा इज़्ज़त और जलाल यसु नासरी को देते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाई शबाज़ गिल। आए उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। कैसे हैं भाई आप? खुदा उनका शुक्र है जी। आपकी फैमिली सब? जी बिल्कुल। आइज़िक टीवी देखते हैं जी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही है तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करें। गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यही है कि हमें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातर दुनिया भेजकर हमें चुन लिया, अपना बना लिया। सो हमें हर रोज़ दिन ब दिन खुदा के हुज़ूर बढ़ना चाहिए, ईमान में मजबूत रहना चाहिए। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एज ए चैनल की सारी टीम के लिए, एज ए चैनल के सारे अच्छे काम के लिए, कि उन्होंने पाकिस्तान बल्कि दुनिया की सतह पर, जैसा कि यीशु मसीह के दौर में शागिर्दों ने काम किया तो उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। सो मैं यही समझता हूँ कि एज ए चैनल ने भी जब काम किया तो उन्होंने खिदमत के हवाले से लेफ्टिनेंट की वजह से दुनिया में तहलका मचा दिया। सो खुदा इस टीम को दिन ब दिन बरकत दे और इसके वसीला से बहुत सारे वो लोग जो गुनाह में फंसे हुए हैं वो खुदा को जाने, कबूल करें और खुदा पर ईमान लाएं। जी खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपने बड़ी खूबसूरत बरकत वाली बातें की हैं और मेरा ईमान है कि जितनी ज़िंदगियों ने सुना है उन्होंने भी बरकत को रिसीव किया है। तो इसी के साथ चलेंगे नाज़रीन एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहा हूँ 26 चक दुनियापुर के अंदर और मेरे साथ मौजूद है विलियम सी की फैमिली। आइए उनसे बात करते हैं। सलाम जी। सलाम जी, मेरी तरफों सलाम साहब नूं। मेरी गवाही इस तरह कि मेरे गर्दन तो बहुत वड्डा फोड़ा निकलिया सी, बहुत वड्डा, ते हस्पताल में लैके गए तो ऑपरेशन करन लगे तो मैं उथों नस आई। क्या मेरा अमान खुदा ते वे, मेरा यसू मेरा ऑपरेशन करेगा। जिस दिन मैं दौड़ी सा ना उस दिन शाम को खुदा ने मेरे फोड़े का ऑपरेशन कर दिता। इस टाइम मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ते सारा इज़्ज़त जलाल तुसी किनू दोगे? यसू नूं। खुदा तुहानू बहुत बरकत दे। जी तो नाज़रीन इस गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा। हालेलुया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ मैं मौजूद हूँ दुनियापुर 26 चक के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं भाई मुनव्वर शहजाद साहब। आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसा जलाली बड़ा काम किया है और उनकी क्या गवाही है और वो क्या कहना चाहते हैं। सलाम भाई। सलाम जी, क्या हाल है भाई? ठीक हो? जी शुक्र है, खुदावंद का बड़ा फजल है। आप कैसे? जी मैं भी ठीक हूँ।
ایزک ٹی وی کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جب کرونا کا وقت تھا تو اس وقت جو پروگرام جو ہیں ٹی وی پہ انور فضل صاحب نے جو کیے ہیں ان سے ایک تو لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور لوگوں نے برکت بھی پائی. تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ایک چینل جو ہے وہ کھول رکھا ہے جس کی وجہ سے گھر گھر میں جو ہے وہ انجیل کی بشارت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں اور ہم بھی برکت پا رہے ہیں. اور جیسا کہ اب ایک اور چینل کا آغاز ہو چکا ہے اٹرنل لائف جو انگلش چینل ہے, اس پر بھی یہ ساری نشریات پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. تو یہ پاسٹر انور فضل صاحب نے اس چینل کو بھی شروع کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دوسرا چینل جو ہے اس کا بھی افتتاح کیا ہے. تو وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اس سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو سکتا ہے. بالکل, خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے, آپ کے گھرانے کو برکت دے اور آپ لوگ مسیح میں آگے بڑھتے جائیں. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ فیملی کے اور بھی ممبر موجود ہیں, آئیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام جی. السلام جی. السلام جی. جی آپ آئزک ٹی وی دیکھتی ہیں بڑے شوق سے؟ آپ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں آئزک ٹی وی چل رہا ہے. جی ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. صبح کے وقت ہم جب اٹھتے ہیں اس وقت شروع کرتے ہیں, اس وقت آن کر لیتے ہیں اپنا ٹی وی اور شام تک یہ دیکھتے ہیں. مجھے تو بہت ہی پسند ہے. میں تو بچوں کو بھی یہ بولتی ہوں کہ یہ جو کارٹون ہے دوسرے چینل ہے یہ نہیں لگایا کریں, مجھے ان سے نفرت ہے اور واقعی مجھے نفرت ہے ان سے. تو مجھے تو صرف یہ ایزک ٹی وی جو ہے نا یہ بہت پسند ہے, اس سے میں نے بہت برکتیں حاصل کی ہیں. اور میری ایک گواہی ہے کہ میرے پاؤں کے اوپر جو تھا وہ بہت بڑی, جو جیسے آپ سمجھے کہ گلٹی اور سولی سمجھتے ہیں ایسے تھا. تو میں کراچی میں گئی اپنی بہنوں کے پاس, تو انہوں نے بولا کہ یہ 2 منٹ کا آپریشن ہے, 2 ٹانکے لگیں گے. میں نے کہا جو میرا جو اوپر زندہ خدا ہے وہ کس لیے ہے, وہ میرے آپریشن کو ٹھیک کر دے گا, وہ میرا آپریشن کرے گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا جب آپ دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گی تو دیکھنا یہ نہیں ہوگی. تو واقعی جب روزے تھے میں روزوں میں دعا کرتی تھی, بائبل پڑھتی تھی اور اس کے اوپر بس ہاتھ رکھتی تھی دعا کر کے. اس کے بعد بالکل ختم ہو گئی. جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں, خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے. آپ ایمان کے ساتھ دعا کرتے رہیں, روزہ رکھا, تو کس نے پھر آپ کو شفا دی؟ میرے خدا نے, جو زندہ خدا ہے اس نے مجھے یہ شفا دی ہے. جب میں دوبارہ گئی تو کچھ بھی نہیں تھا. واقعی انہوں نے یقین کیا کہ آپ واقعی خدا کو مانتی ہیں, اور میں مانتی ہوں کہ خدا جو زندہ خدا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. اپنے بچوں کو خاص کر یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف ایزک ٹی وی دیکھا کریں, بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں. میں اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر سارا وقت جو زبور ہے وہ گاتی رہتی ہوں. یہ مجھے دیکھتے بھی ہیں کہ واقعی امی جو ہے یہ زبور گاتی رہتی ہیں. اس کو پکڑ کر جب یہ روتا ہے تو میں 23 زبور پڑھ لیتی ہوں, 100 زبور پڑھتی ہوں, 91 زبور پڑھ لیتی ہوں, تو وہ رونا بند کر دیتا ہے. تو پھر یہ کہتی ہیں کہ امی جب روتا ہے تو آپ اس کے اوپر دعا کر لیا کریں. تو میرا ایمان ہے کہ جب میں خدا سے مانگتی ہوں تو وہ دیتا ہے, ضرور دیتا ہے. ایمان کے ساتھ مانگنے والے کو خدا دیتا ہے. بالکل, دکھاوے کے لیے کروں تو نہیں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کے ایمان کو اور بڑھائے, آپ کی فیملی کو سلامت رکھے اور آپ سب لوگ مسیح میں آگے بڑھتے جائیں اور خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے رہیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ناظرین, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جو بھی زندگی ہے, جو بھی شخص ہے, وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے, جب بھی وہ خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنے گا اس کا ایمان بڑھے گا اور وہ برکت کو ریسیو کریں گے. جس طرح ابھی آپ نے گواہی سنی کہ وہ ایمان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب میں دوبارہ آؤں گی تو یہ نہیں ہوگا. آپ بھی جب ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں بھی بڑا کام کرے گا. جی تو ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم پھر ملیں گے نئی جگہ پر, نئے شہر میں, نئے لوگوں کے ساتھ اور نئی گواہیوں کے ساتھ. اب اپنے ہوسٹ آفتاب گل کو اجازت دیں ود کیمرہ مین سمیر سرور. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی, گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل, گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد.